Good morning, students. Welcome back for the third day. Yesterday, on second day, we had started about different plate tectonic theories, folding, faulting, and volcanic eruptions, and in short, we had discussed about major physiographic divisions of India. Now, today, we'll start with our physiographic divisions in detail. Major physiographic divisions of India. The physical features of India can be grouped under the following physiographic divisions: the Himalayan mountains, northern plains, peninsular plains, Indian desert, coastal plains and the islands. हम अलग अलग मैदानी इलाकों के बारे में अब हम पढ़ेंगे. The Himalayan mountains. Himalayas, geologically young and structurally old mountains, stretch over northern borders of India. हिमालय भूवैज्ञानिक तौर पे यदि हम देखें तो सबसे नवीन और नए बने हुए पहाड़ हैं जो कि भारत के नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर स्थित हैं. It is clear from this map. These mountains ranges run in west-east direction from the Indus to the Brahmaputra. वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हुए इंडस से ब्रह्मपुत्र की तरफ हम बढ़ते हैं. The Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. हिमालय संसार के सबसे विशाल और भव्य पहाड़ माने जाते हैं. They form an arc which covers a distance of about 2,400 kilometers. ये 2,400 किलोमीटर तक लंबे फैले हुए. The width varies from 400 किलोमीटर in Kashmir to 150 किलोमीटर in अरुणाचल प्रदेश. यदि इनकी चौड़ाई के बारे में हम बात करें तो कश्मीर में जहाँ पर ये 400 किलोमीटर चौड़े हैं वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 150 किलोमीटर ही चौड़े हैं. The altitudinal variations are greater in eastern half than those in the western half. The Himalaya consists of 3 parallel ranges in its longitudinal extent. यदि altitudinal variations देखें तो ईस्ट और वेस्ट दोनों ही तरफ काफ़ी अंतर पाया जाता है. हिमालय 3 अलग अलग हिस्सों में बांटे. A number of valleys lie between these ranges. और जो ये अलग अलग श्रृंखलाएं या श्रेणियां हैं इनके अंदर बहुत सारी घाटियां भी पाई जाती हैं. The northernmost range is known as Great or Inner Himalayas or the हिमाद्री. सबसे ऊपरी लेयर हिमाद्री या इनर हिमालय या ग्रेटर हिमालय के नाम से जानी जाती है. It is the most continuous range consisting of loftiest peaks with an average height of 6,000 meters. इसमें लगातार पहाड़ी की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं जो कि तकरीबन 6,000 मीटर की ऊंचाई लिए हुए. इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स. यहाँ पर हिमालय की तकरीबन सारी ऊंची ऊंची श्रृंखलाएं पाई जाती, चोटियाँ पाई जाती हैं. द folds of Great Himalayas are asymmetrical in nature. The core of this part of Himalayas is composed of granite. It is perennially snow-bound and a number of glaciers descend from this range. यहाँ पर जहाँ पर ग्रेनाइट के पत्थर पाए जाते हैं वहीं पर साल भर यहाँ पर बर्फ दिखाई देती है और इन्हीं ग्लेशियर्स की वजह से काफ़ी सारी श्रृंखलाएं हमें अलग अलग हाइट से दिखाई देती हैं. The range lying to the south of Himadri form the most rugged mountain system and is known as Himachal or Lesser Himalayas. हिमाद्री या फिर ग्रेटर हिमालय के बाद में जो नेक्स्ट हिमालय की रेंज आती है वो हिमाचल या फिर लेसर हिमालय के नाम से जानी जाती है. द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स. इन श्रृंखलाओं के अंदर बहुत सारे परिवर्तित
चट्टानें पाई जाती हैं। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3,700 and 4,500 meters and average width is of 50 kilometers. 3,700 से लेकर 4,500 मीटर की ऊंचाई लिए हुए जहाँ पर ये हैं, वहीं पर तकरीबन 50 किलोमीटर की चौड़ाई लिए हुए पहाड़ मौजूद हैं. While the Pir Paranjal range forms the longest and the most important range, the Dhauladhar and the Mahabharat ranges are also prominent ones. इनकी श्रृंखलाएं पीर परांजल, धौलाधर और महाभारत श्रृंखलाएं. This range consists of famous valleys of Kashmir, Kangra, Kullu in Himachal Pradesh. This region is well known for its hill stations. इन्हीं श्रृंखलाओं के अंदर कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू की घाटियां हैं और ये इलाका हिल स्टेशन के लिए एक अच्छी पर्वतीय स्थल भी. The outermost range of Himalaya is called the Shivaliks. ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बाद में जो तीसरी रेंज या श्रृंखला हिमालय की पाई जाती है वो है शिवालिक. They extend over a width of 10 to 50 km and have an altitude varying between 900 to 1,100 meters. 10 से 50 किलोमीटर की चौड़ाई पर ये पाए जाते हैं और 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई लिए ये मौजूद है. These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the Himalayan ranges located farther north. इनके अंदर नदियों के द्वारा लाई गई अलग अलग चट्टानों से बनी हुई पहाड़ियां पाई जाती हैं. These valleys are covered with thick gravel and alluvium. जो घाटियां हैं वहाँ पर ग्रेवल और एलुवियम की मोटी परत पाई जाती है. The longitudinal valley lying between lesser Himalayas and the Shivaliks are known as dunes. जो लेसर हिमालय और शिवालिक्स की बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल घाटियां हैं उन्हें दून्स के नाम से जाना जाता है. फॉर एग्जाम्पल देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून. Besides the longitudinal division, the Himalaya has been divided on the basis of regions from west to east. सिर्फ ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय या शिवालिक्स में ही नहीं, हिमालय को वेस्ट से ईस्ट की तरफ अलग अलग हिस्सों में भी बांटा गया. These divisions have been demarcated by river valleys. For example, the part of Himalaya lying between Indus and Satluj has been traditionally known as Punjab Himalaya. हिमालय का वो हिस्सा जो इंडस और सतलज रिवर के बीच में बहता है उसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है. बट इट इज ऑल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली. एक तरफ जहाँ पर इन्हें पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, वहीं पर कुछ इलाकों में कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी इन्हें जाना जाता है. द पार्ट ऑफ द हिमालयाज lying between Satluj and Kali rivers is known as Kumaon Himalaya. सतलज और काली नदी के बीच का हिमालय का हिस्सा कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है. The Kali and Tista rivers demarcate the Nepal Himalayas. काली और टिस्टा नदी के बीच वाला हिस्सा नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है और टिस्टा और दिहांग नदी के बीच का हिस्सा असम हिमालय के नाम से जाना जाता है. So you have read about 4 types of Himalayas. One is पंजाब हिमालय. पंजाब हिमालय इंडस और सतलज के बीच में, कुमाऊं हिमालय सतलज एंड काली नदी के बीच में, नेपाल हिमालय काली और टिस्टा नदी के बीच में, और असम हिमालय टिस्टा और दिबांग हिमालय के नदी के बीच में. The Brahmaputra marks the easternmost boundary of the Himalayas. Beyond the Dihang Gorge, the Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of the India. They are known as the Purvachal or the eastern hills and the mountains. ब्रह्मपुत्र हिमालय की ईस्टर्न बाउंड्री मानी जाती है. Beyond the Dihang Gorge, Himalayas bend sharply to the south
दिहांग गॉर्ज हिमालय साउथ की तरफ झुकता जाता है और स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया, और यहाँ से वो भारत की ईस्टर्न बाउंड्री की तरफ फैलता है। यहाँ पर इन्हें पूर्वांचल या ईस्टर्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। These hills running through the northeastern states are mostly composed of strong sandstone, which are sedimentary rocks. इन पहाड़ियों पर जो चट्टानें पाई जाती हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। Covered with dense forests, they mostly run as parallel ranges and valleys. घने जंगलों से घिरी हुई ये पहाड़ियाँ श्रृंखलाओं और घाटियों से लदी हुई। द पूर्वांचल comprises पातकाई हिल्स, नागा, मणिपुर एंड मिजोरम। पूर्वांचल जो पहाड़ियों की श्रृंखलाएं हैं उसमें पातकाई, नागा, मणिपुर और मिजो हिल्स आते हैं। सेकेंड इज द नॉर्दर्न प्लेन्स, जो उत्तरी मैदानी इलाका है। द नॉर्दर्न प्लेन्स have been formed by the interplay of three major river systems, namely the Indus, Ganga and Brahmaputra along with their tributaries. यदि हम मैदानी इलाके के बारे में बात करें तो ये तीन नदियाँ इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं इनके कारण ये बना। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल, यहाँ पाई जाने वाली मिट्टी एलुवियल सॉइल है। डिपोजिशन ऑफ एलुवियम in a vast basin lying at the foothills of the Himalayas over millions of years formed this fertile plains. नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी जब धीरे धीरे पहाड़ियों की तलहटी में जमनी शुरू हुई, हिमालय की तलहटी में जब जमनी शुरू हुई तो ये मैदानी इलाके के रूप में परिवर्तित हुई और इसको बनने में बहुत साल लग गए। इट इज़ वेरी फर्टाइल, ये बहुत ही उपजाऊ भी है। It spreads over an area of 7 lakh square kilometers. The plain, being about 2,400 kilometers long and 250 to 320 kilometers broad, is a densely populated physiographic division. 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में हमारा नॉर्दर्न प्लेन फैला हुआ है, 2,400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर ये चौड़ा है। यहाँ पर बहुत घनी आबादी भी पाई जाती है। विद अ रिच सॉइल कवर्ड combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a very productive part of India. क्योंकि यहाँ पर पानी की प्रचुरता है, बहुत उपजाऊ ज़मीन है, इसी वजह से ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्रीकल्चरल लैंड भी प्रदान करता है। द रिवर्स coming from northern mountains are involved in depositional works. जो नदियाँ आती हैं वो अलग अलग इलाकों में अलग अलग चीज़ों को जमा करती रहती हैं। In the lower course, due to gentle slope, the velocity of river decreases, which results in formation of riverine islands. लेकिन जैसे जैसे नदी आगे जाती रहती है तो जिन इलाकों के अंदर नदी की स्पीड कम हो जाती है या जिन इलाकों के अंदर ढाल कम हो जाता है वहाँ पर रिवराइन आइलैंड्स जमा होते जाते हैं। नदी के बीच में एक तरह का आइलैंड का हिस्सा उत्पन्न हो जाता है। माजुली इन ब्रह्मपुत्र रिवर इज लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड इन दी वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा एक लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड, जहाँ ऐसा रिवराइन आइलैंड जहाँ पर लोग भी बसते हैं, वो है ब्रह्मपुत्र नदी का माजुली। द रिवर्स इन दिस लोअर कोर्स split into numerous channels due to the deposition of the silt. These channels are known as distributaries. नदी जब आगे बढ़ती जाती है तो उसके अंदर बहुत सारे कंकर, पत्थर, मिट्टी जमा होते जाते हैं। उनकी वजह से नदी अलग अलग हिस्सों में बंटना शुरू हो जाती है और इसे डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। नॉर्दर्न प्लेन 3 हिस्सों में बटा हुआ है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर्ड एज पंजाब प्लेन,
फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज की वजह से पंजाब प्लेन बना है। द इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, Ravi, Vyas and Satluj originate in him. This section of plain is dominated by the Doabs. What do you mean by Doab? Doab where 2 rivers meet and Punjab where 5 rivers meet. The Ganga plain extends between Ghaggar and Testa rivers. It is spread over the states of North India, Haryana, Delhi, UP, Bihar, partly Jharkhand and West Bengal to its east. गंगा प्लेन नॉर्थ इंडिया में हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में फैला हुआ है। कुछ इस particularly in Assam lies the Brahmaputra plain. The northern plains are generally described as flat land with no variations in its relief. नॉर्दर्न प्लेन एक सपाट समतल मैदान माना जाता है जिसके अंदर कुछ भी उभार या फिर गड्ढे नहीं हैं। इट इज़ नॉट ट्रू। दीज वास्ट प्लेन्स ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स। ऐसा नहीं है। नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। दीज वास्ट प्लेन्स हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स। According to the variations in these relief features, the northern plains can be divided into 4 regions. इन्हीं अलग अलग लैंडफॉर्म्स की वजह से नॉर्दर्न प्लेन को 4 हिस्सों में बांटा गया। The rivers, after descending from the mountains, deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 km in width, lying parallel to the slopes of the Shivaliks. It is known as Bhabur. जब नदियां पहाड़ से बहकर आती हैं तो 8 से 16 किलोमीटर के इलाके के अंदर जब ये बहुत सारी चीज़ें डिपॉजिट करती जाती हैं तो उस इलाके को भाबर बोलते हैं। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन द भाबर बेल्ट। सारी नदियां इस भाबर इलाके के अंदर गायब हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो चुका होता है। साउथ ऑफ दिस बेल्ट the stream and the rivers re-emerge and create a wet, swampy and marshy region known as तराई। नीचे साउथ की तरफ जब ये आगे बढ़ती जाती हैं तो फिर से अचानक से वो नदी कुछ गीले और दलदली इलाके उत्पन्न करने शुरू करती हैं जिन्हें तराई कहते हैं। This was a thickly forested region full of wildlife. The forests have been cleaned to create agricultural land and to settle migrants from Pakistan and Afghanistan. जो ये इलाका था, इस तराई वाले इलाके में जनसंख्या को बसाने के लिए जंगलों को साफ किया गया। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम्स। नॉर्दर्न प्लेन का सबसे पुराना हिस्सा एलुवियम से बना हुआ है। दे लाई अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर्स। दिस पार्ट इज नोन एज भांगर। जब ये हिस्सा आगे बढ़ता है तो वो एक टेरेस की जैसी संरचना करता है और उसे भांगर कहते हैं। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैल्केरियस डिपॉजिट्स लोकली नोन एज कांकर। और इस इलाके के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैल्केरियस डिपोजिशन होता है जिसे कांकर के नाम से जाना जाता है। द न्यू यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर। और जो नए उभार बनते हैं उन्हें खादर बोला जाता है। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल, दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। और क्योंकि हर साल इनमें नए नए डिपोजिशंस होते रहते हैं इसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। But that's enough for today. The remaining physiographic divisions will take in our next session.